Okay, We thank can you. hear का spelling तो mistake. Okay, cool. Okay, guys. First of all, apologies from my side that we cancelled Sunday's session, as you know about the Sushant's death. So we're not in the mood to roast anyone, and that is the reason why today's live session is so much of importance to our field. Like everyone is trolling the Bollywood, but in our field there are some people who just for the mere business, play dirty politics with the fellow colleagues or juniors, and that's the reason why we kind of were in the dual thought whether to go ahead with this particular roast or kind of a awareness program that we should really go ahead or no. And that's the reason why we consulted many other physiotherapists across who was in my close vicinity that what should be done. But then all were with the same view that if something is wrong, going wrong with our field, it's very important that we as a fellow physical therapist should speak up and speak up in the faith of physical therapy so that no physio can ever exploit any fellow physios or threaten or spread any wrong information or teach any wrong information, since we both are in the field of instructing some specific courses. So it's very important that the education system in India should always go in the right hand. So we literally have no aim apart from spreading just an education awareness. So if you think that we are doing it for our personal benefits, then please, this show is not for you. This is just creating an awareness amongst the juniors who opt for the courses to make you understand like which are the better courses and see the how the physical therapist tutors which are there is not up to the mark and spreading. We have roasted Saurabh last time to see how his anatomy was completely out of the picture. So at this stage where you're so professional that you're teaching a particular workshop, your basics needs to be strong. And I hope everyone has attended that roast 1 and roast 2. And then I would like to show you that still ये बंदा अभी तक भी नहीं सुधरा है. So whatever we are going to talk, it won't be like our personal views, but whatever we are going to talk over here would be basically all supported with the kind of the evidences. Okay, so you नहीं, remember the guy? इसमें यहाँ पे मैं एक चीज ऐड करना चाहता हूँ। अगर लोग ये सोच रहे हैं कि हम लोग अपने लिए कर रहे हैं, तो आप लोग मेरी हिस्ट्री उठा के देखिए। मैंने हमेशा गलत के खिलाफ आवाज उठाई है, एंड आप फेसबुक अकाउंट पे भी देखेंगे तो आपको हमेशा गलत इंस्ट्रक्टर्स और गलत फेक कोर्सेज के खिलाफ मेरी मेरी आवाज आपको जरूर मिलेगी। एंड यही मेरा मोटिव है, यही यही मेरा और स्वप्निल का मोटिव है कि एजुकेशन देना मुश्किल, मतलब एजुकेशन देने में गलत नहीं है, लेकिन बेवकूफ बनाना अपने ऑन द नेम ऑफ सो कॉल्ड नो कि लेजेंडरी सर्टिफिकेट्स, तो उसके ऊपर हम लोगों ने फिर सोच विचार के बाद हम लोगों ने सोचा कि ये बहुत जरूरी हो गया है अब, क्योंकि अति हो गई है इंडियन मार्केट में। और देखो, जिसको देखो वही धड़ल्ले से जो है अपने सर्टिफिकेशंस बांट रहा है ऑन द नेम की आपको क्रेडिट सिस्टम मिलेगा और ये मिलेगा। तो आज के सेशन से आप लोगों को काफी चीजें क्लियर होंगी, और बहुत सारे जो जूनियर्स हैं और जो बहुत सारे फिजियोस जो पागल बन रहे हैं हजारों रुपए दे दे के, उनका शायद दिमाग थोड़ा ठिकाने पे आएगा। और चलो स्वप्निल, लेट्स Yeah. स्टार्ट विद दिस। So this is the same person whom we roasted last time. So everyone is aware about kind of an anatomy and kind of a kinesiotaping application which he has done totally wrong. So we are going to talk only about the subjects which we have trained officially. We are not going to go into the neurological field or cardiological because that's not our upstream. So this person, you can see, in a live session, I have asked him the question that is the deep friction massage or thing is can be given on the tendon or no. So he replied me after 2 weeks. If I can show you, the date is not there. Yeah, but the time, it's like 4 days before. And see the kind of response. You have asked me, is deep friction can be given on tendon? Certainly, yes. But see the support evidence
This evidence is taken from the Google. So deep गूगल का friction, एविडेंस तो मैं भी उसके अंदर exactly. एडिट कर सकता हूँ. Yeah, like deep friction मसाज. अभी क्वेश्चन था ये, मतलब ये भाई साहब मेरे को खुद ही इनवाइट कर रहा है कि मेरी मारो करके. अब इसका और कुछ नहीं कर सकता मैं, मतलब इसको रोस्ट करने के बाद उसको इतना समझ जाना चाहिए था कि एटलीस्ट मेरा प्रोफाइल देखे कि कितनी बुरी तरह हम लोग ने मारी है इसकी एनाटॉमी की. स्टिल आफ्टर 4 weeks of this, he's still texting to show his confidence that can we give it on tendon? Yes, certainly. और evidence support किया है गूगल का, वो भी फर्स्ट पेज. ऐसा नहीं कि कुछ रिसर्च एविडेंस दिया है. अगर किसी ने ऑब्जेक्ट किया है तो एटलीस्ट शो देम रिसर्च पेपर और एविडेंस, नॉट जस्ट गूगल का फर्स्ट पेज. ये तो हम लोग अपने पेशेंट्स को भी इतना नहीं देते हैं. So, dude, it's like this is what, and I didn't had a guts to reply for his stupid अरे behavior. ये तो उस वाले पेशेंट की तरह हो गया कि सर मुझे बैक पेन है और मैं गूगल करके आया हूँ कि आपके पास अल्ट्रासाउंड है, टेंस है, हाँ जी है, Yeah, वही चाहिए I मुझे. I just replied ki bhai okay, and then he's saying regards Dr. Saurabh Badwa. I was like as if I was really very convinced about his. And you can read. My question is, can it be given on tendon? And see the answer. Deep friction massage is a specific connective tissue massage that was developed by Cyriax. Okay. The purpose of deep friction massage is to maintain the mobility within the soft tissue structures of ligament, tendon, muscles, and prevent adherent scar from forming. इसमें मेरे क्वेश्चन का आंसर कहाँ है? I was like, dude यार, come on, यूके से फिजियोथेरेपिस्ट करके आया और still you're sending me such. ठीक है, ये चलो, ये तो लास्ट टाइम का रोस्ट का एक ट्रेलर था. टुडे जो बिग पर्सनालिटी which we are going to, can't say roast, but just to make you aware कि क्या है, पहले ट्रेलर देख लो यार, तुमको थोड़ा आइडिया आएगा. देखा ही होगा, फील ले लो. This is what we are going to talk about. The first one is hacking. Second is the content copying and backstabbing, and the way of doing business. अच्छा एडिट किया है ना? Yeah, so they only like followers, likes, and views. And the challenge to come one-on-one live. ये छोड़ो. So I hope everyone must have seen that particular thing. And today the first topic which we are going to show you guys, how some fellow physical therapist, okay, literally backstab, hack their accounts, and promote their courses. So I'd like to give you a history of how it started. The reason of doing that particular video was, इसको भारत and रत्न देने का मन कर रहा है इस समय. seriously, and like people are being so stupid these days कि they feel कि if they are at one particular post that they will seriously uh, like do anything what they want. So कहानी number 1 as we go, we'll all start. I think दिख नहीं रहा. Okay, so kahani number 1, we are going to start by hacking a Facebook group. Okay, hacking a Facebook group. Now imagine a physical therapist hacking a Facebook group. So everyone should at this particular time should be aware that me and Ankit were the first one to get a KTA, that is Kinesthetic Association International courses, which was the legalized courses in India. And this was in year 2012, that we formed a group which was called as India Goes Kinesio. So this is with the proof. This is the group which we formed, which was India Goes Kinesio. Now Kinesio, And I remember, think ये 2011 की बात है. I think ये 11 की बात है. yes. ये ग्रुप मैंने बनाया था when we were the organizer of this particular company which has a trademark of Kinesio.
ये वो बंदे ने क्या बेसिकली किया? हम लोग काइनेसियो इंडिया बनाया था, काइनेसियो यूएसए के अंडर में। या और उसके साथ में फिर वी वर दी पर्संस हु ब्रॉट दी काइनेसियो टिपिंग सर्टिफिकेशंस इन इंडिया। और उसके बाद ये कहानी स्टार्ट हुई। Yeah. So we formed this particular group just to make students aware about our courses. And now is the main thing. I hope you can see the chat. This is the chat which we had with this person. See the date. It's जूम कर fifth. स्वप्निल, जूम कर दे थोड़ा। हाँ। दिख रहा है? ओके। हम्म। Okay. So this was the message. So ये बंदे ने क्या किया? I'll give you a history of this. This particular instructor has taken a 6 months basic course from Chennai on taping. Just after passing 6 months of taking just a basic certification course, जिसका level भी पता नहीं से basic होगा, has started publishing his book. ये कंपनी के नाम से उसने बनाया इंस्टीट्यूट ऑफ काइनेसियोलॉजी टेपिंग, क्योंकि ये काइनेसियो का नाम नहीं यूज कर सकता है। और ये टेपिंग टेक्निक उसने उसकी एक कंपनी बनाई जिसका नाम था इंस्टीट्यूट ऑफ काइनेसियोलॉजी टेपिंग। और ये टेपिंग के अंडर वो कोर्सेस चला रहा है। ओके, नाउ he was the same when we came into this particular kinesio. इसने तुरंत 2 महीने में अपना ये कंपनी सेटअप किया था just to give us a competition of whatever he wants to teach. Okay, so I have texted him after seeing. So what he used to do is like उसका kinesiology poster वो हमारे ग्रुप में पोस्ट करता था. So we warned him on the same day कि nice to see your updates on taping and all. But being myself being a certified kinesiotaping practitioner from the kinesio group, I would suggest not to put your post in this particular India Goes Kinesio group. Remember, this is year 2013. हम लोग ने उसके ऊपर अभी 2 साल कुछ नहीं बाद पढ़ा। जब प्रॉपरली, Yeah, हाँ, आई थिंक हम लोगों ने प्रॉपरली ये चालू किया था इन 2000, बिकॉज ही इज क्वाइट जूनियर टू अस। एंड जब टेपिंग का इसने चालू किया, एंड द बेस्ट पार्ट इज, मेरे को ये बात समझ नहीं आई कि नॉर्मली एक इंस्ट्रक्टर बनने के लिए हम लोग, मतलब मेरे को आई थिंक 12 से 15 साल हो गए प्रैक्टिस करते हुए, एंड स्टिल इंस्ट्रक्टर के लिए मेरा नंबर नहीं आया है। yeah, एंड जबकि ये बंदा 6 महीने में कोर्स भी कर गया, वो भी वीपी के, आई yeah, थिंक वीपी Chennai, के से किया not था। even international. हाँ, नॉट इवन इंटरनेशनल, वो एक डुप्लीकेट कोर्स है। और वो तब उसने किया इन 6 महीने में। मतलब मजेदार बात ये है कि बंदा KT1 KT2 KT3 लेवल भी कर गया, और उसके बाद उसने अपनी बुक भी छाप दी। अरे Yeah, बाप रे! मतलब yeah, मैं तो ये समझ नहीं पा रहा हूँ कि यार इतने इतना इंटेलिजेंट, मतलब चाचा चौधरी से भी फास्ट हो गया यार ये तो। yeah. So this is what when I did my course, I did it in 2012, and I started teaching only after gaining a confidence, getting an instructor tag in 2017. And such individuals directly. So I have clearly mentioned in 2013, you can see the dates and everything. 9:32 p.m. I said, "Ki nice to see your update on taping and all." So being a certified kinesiotaping practitioner from the Kinesio group, I would suggest not to put your post in the India Goes Kinesio. I get inquiries because what used to happen, the students used to get confused कि ये Kinesio का course है या kinesiology का, and they used to then get a misinformation कि ये Piyush Jain हमारे साथ है, जो बिल्कुल भी सही नहीं था। So I told him, I hope you understand. So इसका reply देखो, dear sir, we have already mentioned that it is not Kinesio and all the numbers are given there. It's a free forum and everyone has a right to post. Sorry for the inconvenience. Dear, we have asked the account manager to post it clearly, not to call any other number except the coordinator not given in the IKT post. Sorry for the trouble. So मैंने लिखा था उसको, still we suggest not to put on that forum. It's a request because it troubles us. So like, brother, I will surely put your words ahead for sure. But hope you know Atlas is a business. Okay, word देख. But assure you that no one will disturb you. Like अगर यार तुम लोग को बिजनेस करना है, फेसबुक का एक ग्रुप बना दो, फ्री में करो। तुम हमारा ग्रुप में से हमारे स्टूडेंट्स को मिस इन्फॉर्मेशन दे के ये प्रूव करना चाहते हो कि तुम लोग काइनेसियो से हो, क्योंकि स्टूडेंट्स को तो कॉल करके हमको पूछेंगे नहीं। अगर तुम हमारे ग्रुप में तुम्हारा पोस्टर डाल रहे हो, तो दैट इज ऑटोमेटिकली कंसिडर दैट यू आर विद द काइनेसियो कंपनी एंड सो यू आर यूजिंग दिस नेम टू मैनिपुलेट योर स्टूडेंट्स। And I've written that a group clearly mentioned
as Kinesio and people misinterpret it, please understand, even if it is an open requesting, भाई को request किया है कि not to put on the Kinesio forum, advertise on other forum is okay, I don't have any problem. मतलब यार free है Facebook, बना दे एक group, हमारे students को क्यों बेवकूफ बना रहा है? So okay यार करके टिक दिया। उस समय बात ये था कि काम नाम तो लोग काइनेसियो का जानते हैं ना। Yeah. अब डुप्लीकेसी करने के लिए भी अकल चाहिए होती है, कहाँ से आएगी वो। So उसको फिर भी लिखा मैंने, ये मेरा फोर्थ वार्निंग था उसको, कि see you're professional and I hope you understand you have numerous forums available where you can marketize, please don't do on this. So it's very difficult for me to make everyone understand, hope you are getting me right. तो बोलता है I will take it as a compliment. I like किस बात का compliment यार, तेरी मार रहा हूँ मैं यहाँ पे कि बोल रहा हूँ तेरे को वार्निंग दे रहा हूँ, तो बोलता है I will take this as a compliment for IKT dear. आई लाइक ठीक है भाई थैंक्स, तेरे से दिमाग फोड़ी करके कुछ फायदा नहीं है। फिर भैया ने फिर से दोबारा, आई थिंक ये 1 महीने बाद फिर दोबारा पोस्ट, इतना बोलने के बाद, और इसने अश्योर किया था ब्रदर बिदर कि मेरे को डालना नहीं है, फिर उसने कि मैंने इसको फिर दिखा था कि ड्यूड प्लीज समवन फ्रॉम योर ग्रुप इज अगेन पोस्टिंग इट ऑन द ग्रुप, सो इट्स रिक्वेस्ट दैट यू शुड प्लीज स्टॉप दिस। तो बोलते हैं हाँ वी विल नॉट पोस्ट इट, वी ऑलरेडी टोल्ड यू यस्टरडे ब्रो, डोंट एक्ट सो चाइल्डिश। साला एक तो मेरे ग्रुप में डाल रहा है और ऊपर से मेरे को ही बोल रहा है चाइल्डिश बिहेव मत कर। तेरे को हम लोग इतने प्रोफेशनल लैंग्वेज में रिक्वेस्ट कर रहे हैं, इसको बोल रहे हैं, और ये हमको बोल रहा है कि आई वी आर एक्टिंग चाइल्डिश। तो ग्रुप है यार, फेसबुक है, आराम से बना, जितना ग्रुप चाहिए उतना। अगर किसी को वार्निंग दे एक सादा बंदा जिसको कॉमन सेंस है, वो भी नहीं डालेगा। तुम लोग को बस ठगना है लोगों को, इसके लिए तुम लोग हमारा ग्रुप इस्तेमाल कर रहे हो। तो इसको बोला भी भैया थैंक्स, चाइल्डिश के ऊपर तो मैंने कुछ बोला नहीं बिकॉज माई नो कि क्या लेवल है इसका। द रीजन आई सेड द पोस्ट स्टिल एक्सिस्ट बिकॉज यू नो दैट बेटर, थैंक्स फॉर बीइंग सपोर्टिव। अब इतना प्रोफेशनलिज्म से मैं बात करूंगा और इसका चाइल्डिश। फिर दोबारा उसका पोस्ट झलका हमारे ग्रुप पे कि अगेन योर आईकेटी पोस्ट आर बीइंग स्लैश्ड ऑन इंडिया गोस काइनेसियो फोरम, told you before also that let your marketing guys to tell not to post on the India Goes Kinesio forum. So I talked to them and they were posting, but this is not from other side, इसका यही बहाना चल रहा है। और फिर इसने दोबारा, so I told him कि see this is not right, it leads to more confusion around the students. The reason because ये क्या करता था, हमारे कोर्सेज के डेट्स और उसके कोर्सेज के डेट सेम चल रहा था। And remember guys, this is from 2013 ना, अभी 2020 चल रही है, 7 साल पुरानी बात है। आई एम थैंकफुल टू फेसबुक कि इसने ये चैट रखा है। ओके इसके बाद बंदे ने क्या किया, सीधा हैक कर दिया ग्रुप। सी अभी जो ये ग्रुप का एडमिन है, एडमिन कौन है देख ले। ओके इतना मतलब पावर कि बंदे ने ग्रुप ही हैक कर दिया। और ये अभी जून 12 की बात है 2020, इसका ये जो फिजियोकॉन कॉन्फ्रेंस चल रहा है उसके पोस्टर्स अभी भी वो हमारे ग्रुप में पोस्ट करता है। यार अगर पर ये इसका एक बात ग्रुप मेरे को, होता तो सबसे पहले इसने ये ग्रुप का नाम चेंज किया रहता, पर फेसबुक में पर ये मुझे पॉलिसी है कि मुझे they तो ये can't बात ही change. समझ नहीं आ रही कि एक तो ये कॉन्फ्रेंस इतनी कितनी लंबी कॉन्फ्रेंस है कि साल भर चलेगी क्या भाई। उसको फ्री कंटेंट मतलब चाहिए रे, they need a free. So what these people are doing is like they are taking young physios और उन young physios को बोल रहे हैं कि like तुम्हारा कंटेंट बनाओ, एक लेक्चर लो, और he is going to upload his on YouTube channel। और उसको क्या होने वाला है कि they are going to get views, they are going to get subscribers एंड कंटेंट स्टूडेंट्स का रहेगा। सो से फॉर एग्जांपल मतलब अभी आर्या ने मैसेज किया, ये आदत शुरू से रही है कि दूसरे के या कंधे पे बंदूक चलानी है। बस जब मार्केट में आया तो काइनेसियो का नाम यूज करके, और अभी भी मतलब इतना बेवकूफ बनाता है कि मेरे सर्टिफिकेशन की ये वैल्यू है। या और टेक्निकली गाइस मैं बता दूं, सर्टिफिकेशन की यहाँ पे इंडिया में 99% इंस्ट्रक्टर्स जो हैं फेक हैं। उनके सर्टिफिकेशंस की मार्केट में कूड़े से बढ़ कोई के वैल्यू वैल्यू नहीं नहीं है है। सीरियसली। और तो इसलिए ये अपने अपन ये हम्म बंदा ने तो कवर फोटो तो चेंज कर पाया इन, हम्म क्योंकि वो फेसबुक ने तो अलाउड नहीं किया, तो कवर फोटो इसने चेंज किया इंस्टीट्यूट ऑफ काइनेसियोलॉजी, पर ग्रुप अभी भी काइनेसियो, अभी भी काइनेसियो के पास अथॉरिटी है इस करप्शन को, अभी भी चाहिए तो काइनेसियो इसके ऊपर अच्छा खासा साइबर क्राइम ठोक सकता है। मैंने तो ऑलरेडी केस ठोका है इसके ऊपर साइबर क्राइम का कि इतना ग्रुप हैक करके बैठा है मेरा वाला ये,
ये अभी भी एडमिन है, अभी भी पोस्ट करता है। मतलब इसको इतनी शर्म नहीं है कि इफ योर फेलो फिजियोस बैक इन 2013 इज रिक्वेस्टिंग यू टू नॉट पोस्ट एज अ ह्यूमन बीइंग, एटलीस्ट डू दैट, डोंट डू दिस स्टूपिड इडियट बिजनेस। और ये क्या करता है, सपोज अभी ऋतुजा है, तो फॉर एग्जाम्पल आई रिक्वेस्टेड ऋतुजा की ऋतुजा एक टॉपिक के ऊपर तू बोल, तो ऋतुजा विल मेक वीडियो, सेंड इट टू मी। मेरा काम क्या है, यूट्यूब पे पोस्ट करना, तो मेरे को तो फ्री कंटेंट मिल रहा है और व्यूज मेरे को मिल रहे हैं, सब्सक्राइबर मेरे को मिल रहे हैं। मोनेटाइजेशन यूट्यूब से ऐसे ही पैसा कमाया जा सकता है। तो ये म्यूजिक अरे कंपटीशन, क्राफ्ट भाई, और ये सब। भाई मैं तो सीरियसली दाद देता हूँ इस बंदे की, कि मतलब ये लिटरली अगर आदमी मर रहा हो ना, ये रुक जा रुक वाकई जा में रुक जा, उनमें से है जो मरते हुए से भी ट्रेंडिंग का पैसा आने काट वाला है। काट लेगा भाई। उसकी हाउ, बॉडी बेच लेगा, उसके क्या बोलते हैं, उसके ऑर्गन्स बेच देगा। मैं तो मतलब सीरियसली इतना दिमाग लाते कहाँ से हो भाई? सीरियसली एक तो कंटेंट कॉपी किया। अब ये बात थी 2013 किया, आई एम स्टिल स्ट्रेसिंग, हम लोगों ने कुछ नहीं किया क्योंकि हमको फर्क नहीं पड़ता तुम लोग ग्रुप हैक करो या कुछ करो। हमारे स्टूडेंट्स है हमारे पास, हमारे कोर्सेज अच्छे चल रहे थे 2000, तो हम लोग को फर्क नहीं पड़ रहा था कि तुम ग्रुप हैक करो या स्टूडेंट्स ले लो। स्टूडेंट्स भी इतने पागल नहीं कि उनको समझ में नहीं आएगा कि कौन ऑथेंटिकेट है। अगर 2013 से तो अभी तक सिखा रहा है तो तेरे पास अभी भी स्टूडेंट्स आ नहीं रहे, तो यू नीड टू फर्स्ट असेस योरसेल्फ बिफोर यू पॉइंट आउट फिंगर्स टू अनदर। और ये हमारे पीछे उंगलियां करते हैं कि दे लिटरली, इन लोग क्या करते हैं, हम मेरे कोर्सेज में अपने ऑर्गेनाइजर्स को एज अ स्टूडेंट्स बुलाते हैं एंड देखते हैं कि क्या कंटेंट स्वप्निल माटे सिखा रहा है, कौन सा सर्टिफिकेशन है, एंड दे स्प्रेड इन देयर ग्रुप दैट देयर सर्टिफिकेशन इज नॉट ऑथेंटिकेटेड। मतलब ये स्कैम चल रहा है। इट्स लाइक दे सेंडिंग देयर ऑर्गेनाइजर्स टू आवर वर्कशॉप्स। मतलब तुम लोग वर्कशॉप सीखने नहीं आते हो, तुम लोग ये प्लान करने आते हो कि हम क्या कंटेंट सिखा रहे हैं। गाइस गुड थिंग यहाँ पे मैं एक चीज ऐड करना चाहता हूँ। जो भी कोर्स करते हैं ना, आप एक काम करा करो, जितने भी आपके इंस्ट्रक्टर्स हैं, क्योंकि मैं काइनेशियो के साथ बहुत सालों से जुड़ा हूँ और मुझे पता है कि इंस्ट्रक्टर कैसे बनते हैं किसी भी, क्योंकि मैं खुद 25 इंटरनेशनल सर्टिफिकेशंस में इंस्ट्रक्टर हूँ। और मुझे पता है कि इंस्ट्रक्टर बनने के लिए कितना पैसा लगता है और कितना टाइम लगता है। तो आप, सिंपल सी बात है, जो भी आपका कोर्स ले रहा है ना, आप उसको ये बोलिए कि आप अपना इंस्ट्रक्टर सर्टिफिकेशन दिखाइए। और जो भी ऑथेंटिक ऑर्गेनाइजेशन होता है वो आपको इंस्ट्रक्टर सर्टिफिकेशन देता है। और उसके लिए आपको मैं एक प्रोसेस बताता हूँ छोटा सा। मतलब इस बंदे की दाद देता हूँ कि यार ये तो मतलब कृष्ण भगवान से भी तेज है, कि भाई ये कोई टेक्निक आती नहीं मार्केट के अंदर और ये सबसे पहले कोर्स लेना चालू कर देता है। ये तो मतलब इतना खतरनाक हो गया है मार्केट में कि इतनी जल्दी आप, मतलब एक आपको मैं एक बताता हूँ, प्रैक्टिशनर बनने के लिए पहले सारे कोर्सेज करने पड़ते हैं उसके, ऑथेंटिक ऑर्गेनाइजेशन के। उसके बाद उसका एग्जाम देना पड़ता है और उसके बाद उसकी 6 महीने की कंटिन्यूस प्रैक्टिस होती है। कंटिन्यूस प्रैक्टिस होने के बाद आप इंस्ट्रक्टर का सर्टिफिकेशन करने जाते हो, उसका एग्जाम देते हो, देन उसके बाद आप लाइसेंस साइन करते हो उस ऑर्गेनाइजेशन के साथ। देन फॉर 3 इयर्स यू विल बिकम अ इंस्ट्रक्टर। ठीक है, और वो उसका बकायदा आपको सर्टिफिकेट मिलता है। तो आप प्लीज, मैं तो ये कहता हूं कि आप सब इन सबसे ये पूछिए जो भी इंस्ट्रक्टर बने फिरते हैं, कि आप अपना जो है कोर्स लेने से पहले ना इंस्ट्रक्टर सर्टिफिकेट बताइए। ठीक है, तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि अगर उसमें से आपको सिर्फ एक, मतलब 100 में से एक बंदा आपको ऐसा मिलेगा जो ये कहेगा कि हाँ ये रहा इंस्ट्रक्टर सर्टिफिकेट। बाकी सब किसी के पास, किसी को पता भी नहीं है कि, क्योंकि वो कोर्सेज ही नहीं करे उन्होंने, तो इंस्ट्रक्टर सर्टिफिकेट कहां से करेंगे? तो इतनी जल्दी मतलब कोई टेक्निक आती नहीं मार्केट के अंदर और आप कोर्स भी चालू कर देते हो। यार मतलब ये तो इतना मजेदार मेरे को खेल लग रहा है कि बहुत ही बेवकूफ बना रहे हैं लोगों का। या और एक तो चलो कोर्स सिखाओ, बी, मतलब वी ऑब्वियसली हैव ऑब्जेक्शन इन टेकिंग द कोर्स, बट हमारे पास काउंसिल नहीं है तो कोई इसका ऑब्जेक्शन ले नहीं पा रहा है। तो ये हो गया हिस्ट्री की बात 2013। नाउ आई विल शो यू कि आई ऑब्जेक्टेड अबाउट दिस इश्यूज राइट सिंस 2013। 2017 में we are all doing with kind of evidence, huh? So don't consider this as something fake. कहाँ गया? Yeah. So 2013, I hope you know this person. I'm not going to take the name. This was in May 4, 2017. Remember the date on Facebook. He stated that be aware of the workshops. Yesterday they were attending and today they were teaching. Now the courtesy was someone else, but he posted tagging both his Facebook account.
So Swapnil Mate has replied there, and that was his reply. कि I hope दिख रहा है ना? दिख रहा है. Yeah, I hope there is some action taken. Just by posting, this thing is not going to work. This is, guys, in 2017. Okay, I would like you to mention a name here, but कोई reply नहीं. Then I would like to know my own physio people who are unaware of the name. Can you please enlist sir here? So I think you think they are going to change themselves. If they would have never initiated the workshop. I have tried from last 4 years, but nothing happened. And I challenged you. Okay. So I have tried this 4 years back, nothing changed. I challenge you, nothing will happen in the next 4 years. Things will remain the same. File a case and see the result. I don't mind initiating a case against them. Yeah, so ये वो conversation था. I won't mind initiating. We'll have the same conversation in 2020. Destiny देख कि 2017 में मैंने बोला था कि 2020 में हम लोग ये सेम कन्वर्सेशन करेंगे और मेरे को नहीं पता था ये लॉकडाउन में इतना होगा कि मेरे को ये सब करना पड़ेगा. But this is all destiny working. Their karma is making them speak for them. So you can see clearly we have mentioned here that we'll have the same conversation in 2020 as well. So somewhere तो destiny हमारे is also इससे saying, इससे ये पता चलता है. रुक जा एक मिनट. So some people claim themselves as a researchers. Still उसका ये council का बंदा है. He is the president of the Maharashtra OTPT Council, to which this is on Facebook. This is not as a private email या कोई जो कोई देख नहीं पाएगा. Some people claim themselves as the researchers. Some become the founder of the technique. Some self-acclaimed author. Some कोई first Asian बन जाता है टेक्निक में. कोई क्वैक्स है, कोई किसी का खुद का ही एसोसिएशन है, कॉन्फ्रेंस भी लोग खुद के करते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. बट ये बंदे ने एक इतने सारे रिप्लाईज का एक भी ये नहीं किया. क्यों? द रीजन वाई, बिकॉज पीयूष जैन एंड अपना प्रेसिडेंट दोनों कंटेंट यहाँ पे चोरी हो रहा है. तब जाके मेरे को इतने नेगेटिव क्रिटिसिज्म आए थे वो बंदे की पोस्ट के लिए कि आई हैव टू लिटरली टेक दिस अपॉर्चुनिटी टू स्पीक ऑन बिहाफ ऑफ द fellow physios, to roast him, to expose that this politics which he has played with me in 2013 is still continuing in 2020. And इसके बाद हम लोग जो बात करेंगे वो थ्रेटनिंग के ऊपर कि how being at this position this person is threatening young physios to do any kind of sort. तो वो बोलना है कुछ इसके ऊपर? बिल्कुल बोलना है, क्योंकि यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि बंदा क्योंकि देखो यहाँ पे खुद देखो आप लोग कि जब आपकी काउंसिल आईएपी अगर सब ये सब के सब अगर ऐसे फेक इंस्ट्रक्टर्स को सपोर्ट करेंगे तो आप खुद सोच सकते हो कि आपका भविष्य कितना अच्छा है. ठीक है, तो अगर जब एक पोजीशन पे बैठा हुआ बंदा जब अगर गलत के खिलाफ नहीं बोल रहा है, अगर भाई मैं तो ऐसा नहीं हूं, कल को अगर स्वप्निल गलत कुछ करता है तो मैं इसको स्ट्रिक्टली बोलूंगा कि स्वप्निल, मैंने इसको कई बार बोला भी स्वप्निल की ये चीज गलत है, तो स्टैंड लेना चाहिए अपने प्रोफेशन के लिए. अगर सही है तो सही है, गलत है तो गलत है. तो कोई भी इसके लिए आवाज उठा सकता है और डरने की जरूरत नहीं है किसी को भी, क्योंकि कोई यहाँ पे किसी का लेके नहीं खा रहा है. और सबसे बड़ी बात है कि सबसे बड़ी बात, आप अपने प्रोफेशन को ही डाउनग्रेड कर रहे हो. जब आप एक लेवल की एजुकेशन दोगे बच्चों को, जो आपकी लेवल है, आप वही लेवल अगर एजुकेशन बच्चों को दोगे तो जो बच्चे निकलेंगे बाहर वो किस लेवल के निकलेंगे. फिर आप कहते हो काउंसिल नहीं है, फिर आप कहते हो कि ऑर्थोपेडिशियन हमारे पे चढ़ते हैं, हम ऑर्थोपेडिशियन का जो उनका आता है सारा का सारा हम उसको फॉलो करते हैं, हॉस्पिटल्स में ऑर्थोपेडिशियंस हम पे ऊपर बैठे हैं. क्यों? तो आप अपने इतना कैपेबल बनो ना कि आप उनको चैलेंज कर सको कि बॉस तुम्हारा काम हम कर सकते हैं लेकिन हमारा काम तुम नहीं कर सकते. या एग्जैक्टली. और ये क्या डर्टी पॉलिटिक्स है यार? अगर तेरे को बिजनेस ही करना है तो क्लीन बिजनेस करो. यू डोंट हैव टू थ्रेटन समवन, यू डोंट हैव टू हैक देयर ग्रुप. यू डोंट सी, हमको फर्क नहीं पड़ता बिकॉज वी नो आवर लेवल. वी डोंट हैव टू डाउनग्रेड. अगर मैं चाहता तो 2013 में इसका बजा सकता था, पर हम लोग ने नहीं बजाई क्योंकि हमको फर्क नहीं पड़ता है. आर वर्क्स आर थिंग. अगर 2017 से मैं कोर्सेज चालू किया, 50 वर्कशॉप तो मैंने ऐसे ही कंप्लीट कर दिए यार विद इन द स्पैन ऑफ 2 years. It's all about you teach right, students will obviously spread your word.
अब ये बंदा 2013 से वर्कशॉप कर रहा है, इसके बॉम्बे में अभी भी कोर्स वो सिर्फ गिने चुने ऑर्गेनाइजर से उसकी वजह से चल रहा है, नहीं तो ये बेवकूफ बनाते जा रहा है वडोदरा, गुजरात। आई फील सो पिटी। और वो सर यहाँ पे मैं ये एक चीज ऐड करना चाहता हूँ स्वप्निल। कितने लोगों ने ये पूछा जाए कि ये ही क्लेम्स दैट कि मैंने हजारों फिजियोज को बनाया है, हजारों फिजियोज को मैंने सर्टिफिकेशन दिए हैं, तो कोई उससे ये पूछे कि भाई साहब आप ये बताइए कि कितने फिजियोज फॉरेन जाके आपके सर्टिफिकेशन के बेसिस पे क्रेडेंशियल जो क्रेडिट्स होते हैं वो ले पाए, या आपके कितने लोगों ने आपके सर्टिफिकेशन की बदौलत वहां पे जाके झंडे गाड़ दिए। अब ये देख इसका नया कारनामा। अब ये कारनामा की तो लिस्ट पड़ी है मेरे पास, इसके ऊपर मैंने 5 दिन वेस्ट किए इतना रिसर्च करके। ये था 2000 पता नहीं सम 16 इन द वर्ल्ड ऑफ डिजिटलाइजेशन। सो जस्ट फॉलो दिस सर्च फॉर की स्पाइन। अब ये बंदे ने फेसबुक वाला प्लेटफॉर्म यूज करके ही ट्राइड टू डिमोरलाइज की स्पाइन। ये बंदे का देख, एक तो फेसबुक अकाउंट तो मेरा हैक कर दिया, हम्म। पर ये यहाँ तक भी नहीं रुका। ये सबको बोल रहा है, इसके फॉलोवर्स जो 45 टैग्स की है, कि की स्पाइन के क्लिनिक पे जाओ और उनको गूगल रिव्यू करो 1 स्टार एंड पोस्ट योर कमेंट एंड एंगर। सो इन्होंने एक कोई तो की स्पाइन ने कुछ एक पोस्ट किया था जो फिजियोथेरेपी के अगेंस्ट था, बट पर्सनली आई डेंट फील दैट इट अगेंस्ट, बिकॉज दे वे ऑब्वियसली सपोर्टिंग। बट इन लोगों को समझ में नहीं आया पोस्ट पोस्ट क्या था। सो दीज पीपल, अगर तुमको प्रॉब्लम था तो तुम लोग पुलिस कंप्लेंट करो की स्पाइन के अगेंस्ट, या लीगल कंप्लेंट करो। तुम लोग तुम्हारे फेलो फिजियोथेरेपिस्ट को इतना चीप हरकत करने के लिए बोल रहे हो कि गूगल रिव्यू करो और उनको एक एक स्टार दो, कि व्हाट मास मीडिया कैन डू सिंपल मेक देयर स्टार्स डांस फॉर देम। अरे वो गूगल रिव्यू क्या तुम्हारे पर्सनल बेनिफिट के लिए नहीं है कि तुमको अच्छा नहीं लगा तो। वो गूगल रिव्यू इसके लिए होता है कि यू गो टू दैट पर्टिकुलर प्लेस, हैव एन एक्सपीरियंस ऑफ व्हाट एग्जैक्टली, एंड देन राइट अ रिव्यू अबाउट इट। ओके। सो ये अब इसका सुन के हमारे प्रेसिडेंट ने तो की स्पाइन सानपाड़ा नवी मुंबई को तो 1 स्टार दे दिया 2 साल पहले। अब तू मेरे को बता, ये गूगल रिव्यू का प्लेटफॉर्म ये 1 स्टार देने के लिए है? यार भाई लीगली लीगली ये होना चाहिए कि या अगर आपको कोई चीज किसी की पसंद नहीं है तो आप उनसे कांटेक्ट करो। इट इज सेम लाइक यू कैन बाय एन एजुकेशन बट कैन नॉट बाय द गुड मैनर्स एंड प्रोफेशनलिज्म। तो वही चीज है कि अगर आप प्रोफेशनल हो तो आज हमें मजबूरन 7 साल बाद 8 साल बाद जब देख के दुख होता है कि बेचारे फिजियोस बेवकूफ बन रहे हैं, तो तब जाके हम यहाँ पे आज इस प्लेटफॉर्म पे आए हैं। और मतलब वो भी प्रोफेशनली हम कर रहे हैं विद एविडेंस। हम किसी को डिग्रेड या करने की कोशिश नहीं कर रहे या नहीं हम कर किसी रहे का हैं। नाम खराब करने को, बट जो गलत है उसके खिलाफ बोल रहे हैं। एग्जैक्टली exactly। तो अभी देखना तू, अगर ये इन्फ्लुएंस कर रहा है, अभी ये इतना शाना है, हम्म। इसने अपने रिव्यूज तो डिलीट कर दिए, पर बेचारा हमारा प्रेसिडेंट ये रिव्यू डिलीट नहीं कर पाया। सो ही इन्फ्लुएंस अदर्स टू गिव 1 रिव्यू और खुद ने नहीं दिया एक भी रिव्यू। अगर अभी भी की स्पाइन के नाम से डालोगे, पीयूष जैन का उधर कुछ नहीं मिलेगा, पर जो जो इन्फ्लुएंस हुए वो ये तो वही बेचारे ने। वाली बात हो गई कि मर्डर वाली जगह पे मर्डर करके भाई ये चाकू पकड़, अभी पुलिस आएगी मेरे को बोलना। हाँ और वो सारे के सारे कल्टी हो लिए और भाई चाकू रह यार, गया एक मतलब के ये हाथ में। बंदा कितना है यार, और हम लोग इतने चुप बैठे हैं कि नहीं कुछ बोले नहीं कुछ नहीं। यार मेरे पे पर्सनली अटैक कितने किए, हर वर्कशॉप में कुछ ना कुछ काड़ी करते रहता है ये। लाइक तुमको सीखना है अभी, और क्या खोलूं इसके बारे में, जितना खोलूं उतना वाहियात हरकत। तो ये हो गया गूगल रिव्यू का। अब आते हैं थ्रेट के लिए। तो यंग फिजियोस, ओके दिस इज फॉर यू। अगर तुमको इन फ्यूचर अगर किसी टॉपिक का इंस्ट्रक्टर बनना है, ओके, तो पहले पीयूष जैन की परमिशन लेनी पड़ेगी, नहीं तो तुम तो गए, तुम्हारा मर्डर अरे होएगा या अरे, तुम्हारा थ्रेटन होगा। एक नया धंधा इसने और चालू कर या दिया है। कैन यू बिलीव कि मतलब अगर जैसे लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं ये कहता हूं कि मैं अपने नाम के आगे फिजियोथेरेपिस्ट का पीटी लगाता हूं, ये बंदा क्या करता है भाई साहब, इस पीटी को भी ये वो करा लेगा ट्रेडमार्क लाइसेंस, और फिर दूसरे को बोलेगा कि आप ना पीटी यूज नहीं कर सकते। अरे भाई, या जो नॉर्मल चीज है वो तो तुम छोड़ दो पेटेंट्स मतलब ट्रेडमार्क कराने से। अब ये देखो प्रूफ थ्रेटनिंग का, ठीक है। ओके, सो पहले तो ही विल रिक्वेस्ट यू। अभी ये एक्स वाई जेड बंदा है, आई एम नॉट टेकिंग हिज नेम, ओके। ये स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग, ये इसका डोमेन तक नहीं है।
इसका हम्म। डोमेन लिमिटेड है सिर्फ टेपिंग, काइनेसियो टेपिंग, ड्राई नीडलिंग और फेशिया भाई इसके पता नहीं ऊपर। क्या क्या है, वो तो हमें भी नहीं पता या है कि फेशिया का तो वाकई में एफ ये तक है नहीं भी कि आता है नहीं। इसको। इसको तो मैं ये है कि नहीं। लिटरली ऑन दिस प्लेटफॉर्म, अगर उसका कोई बंदा सुन रहा है ये, वी आर गोइंग टू ओपनली आस्क हिम टू कम एंड गिव अ लाइव वेबिनार ऑन टेपिंग कि भैया तू 2013 से सिखा रहा है और तुम लोग ने बुक छाप दी तो तेरा नॉलेज कितना अच्छा होगा। तो तू आ मेरे साथ 60 मिनट्स का लाइव सेशन करेंगे एंड टीच ना। तुमको लॉकडाउन में भी 500 रुपए के कोर्सेज करने हैं, हैंड्स ऑन टेक्निक जो तुम लोग सिखाओगे इवन दिस लॉकडाउन भाई पीरियड। अरे इतना क्या कमाया क्या है पता भाई साहब, 2013 कोई से, फ्री दे ऐसा दो यार ट्रेडमार्क निकाल लिया हो, नहीं स्टूडेंट्स के ऐसी लिए। कोई टेक्निक निकाल ली हो कि भाई कंप्यूटर से बाहर निकल के आपको हैंड्स ऑन ट्रेनिंग कराए, तो हूँ क्या मालूम भाई अपने को। या अब ये देख, हाय सर, ये किसी का बंदा है, ओके, जो एक टॉपिक सिखा रहा है। आई एम नॉट गोइंग टू टेल द नेम ऑफ दैट टॉपिक, बट एक बंदा है स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग में जो ये टॉपिक सिखा रहा था। ओके, तो इस बंदे ने उसको अपोज किया कि हाउ कैन यू टेक दैट टॉपिक, क्योंकि मेरा वो मैं ट्रेडमार्क के लिए अप्लाई किया है। ओके, तो इसने डायरेक्टली कॉल किया उसको। वो उसने बोला, वो थोड़ा डर गया और बोला कि नहीं ठीक है, आई वोंट टेक दैट वर्कशॉप, दिस वुड बी माय लास्ट। ओके, तो ये बंदे ने फ्राइडे कभी तो बोला कि हाय सर, ये बड़ा इंटरेस्टिंगली बोलता है, हाय सर, विल यू बी इंटरेस्टेड इन टेकिंग यूट्यूब लाइव लेक्चर इन फिजियोकॉन लेक्चर सीरीज। अब इसको पता है इसके पास कंटेंट है नहीं, बच्चे लोग से बोलेगा कि तुम वीडियो बनाओ, हम लोग पोस्ट करेंगे यूट्यूब पे। तुम्हारा क्या है, तुम वीडियो बना के दोगे, मेरे लाइक सब्सक्राइबर बनाएंगे, मोनेटाइजेशन कर दिया, पैसे कमा रहे हो यूट्यूब से। ओके, तो अरे इसने भाई बोला कि बच्चे भी हाय तो सर। बच्चे भी तो या यहाँ बेवकूफ बन रहे हैं ना, ये समझ के कि भाई लेजेंड है, अभी तो लेजेंड। सुन, अभी तो सुन, ये बंदा उसको रिक्वेस्ट कर रहा है कि विल यू इंटरेस्टेड इन टेकिंग यूट्यूब लाइव लेक्चर। तो इसने बोला कि आई विल लेट यू नो। अभी इसकी लैंग्वेज देख, सर, I hope you remember you said you will do the last course and again can see this. Hope you are man of your words or else it's all legal from our side. अरे किस बात का लीगल यार? वो बंदा स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोर्स ले रहा है, तेरे को स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग का एस और सी भी नहीं आ रहा है और तू उसको लीगल की धमकी दे रहा है। तो ये बंदे ने मेरे साथ बात करने के बाद थोड़ा गट्स आया रहेगा, तो ये लिखा उसको बाद में कि yes sir, this is for the group whom I am teaching regularly with the lectures, and if you want to consider that कि ट्रेडमार्क पीयूष जैन के पास है, तो you send me a copy of your proposal of the word to be used. Kindly would you send me the final copy of the confirmation that it has been registered, and I would definitely not consider. मतलब उसने बराबर बोला, अगर तेरे पास लीगल प्रूफ है कि you can use that word, then show us the copy, जिसका अभी तक कुछ रिप्लाई नहीं आया। ओके, तो गाइज यू कैन रीड ऑल दैट व्हाट इज देयर, सो कुड यू प्लीज शेयर द फाइन। और फिर जब ये बंदे ने रिसर्च की तो ये सामने आया कि 3 मार्च को, 6 मार्च 2020, ये बंदे ने ट्रेडमार्क लाइसेंसिंग। ट्रेडमार्क लाइसेंस, ट्रेडमार्क लाइसेंसिंग। अब इसका हाँ। स्टेटस देखो, ऑब्जेक्टेड। इज ऑब्जेक्टेड। ओके, सो बिकॉज ये इंटरनेशनल टर्म है यार, यू कैन नॉट गेट जस्ट गेट। अब इस बंदे ने क्या किया, ये ड्राई नीडलिंग सिखाता है, तो इसने सर्टिफाइड ड्राई नीडलिंग थेरेपिस्ट का भी एक ट्रेडमार्क बना के रख दिया है। तो यू कैन यूज सर्टिफाइड ड्राई नीडलिंग थेरेपिस्ट। ऐसा कोई दे नहीं सकता है सर्टिफाइड ड्राई नीडलिंग। पहले तो फिजियोथेरेपिस्ट को ड्राई नीडलिंग अलाउड तक नहीं है, कोई काउंसिल अभी तक। वो तो हम लोग इसके लिए पढ़ाते हैं ताकि उसका रिजल्ट एविडेंस के हिसाब से थोड़ा बेटर है ऑन पेन रिलीफ। बट अभी भी वो यूएस में भी अभी भी झगड़ा चालू है बिटवीन एक्यूपंक्चरिस्ट एंड फिजियो वेदर टू यूज दैट और नो, क्योंकि ये हमारा टेक्निक नहीं है यार। फिजियोथेरेपी इज प्योरली नॉट इन्वेसिव। द पीपल हु कम टू माय वर्कशॉप, आई क्लियरली ऑन द वेरी फर्स्ट 15 minutes only I mention कि this is not, if something goes wrong there is no counsel who will support you, so whatever is there in the context of the book you do it। और ये बंदे ने उसका ट्रेडमार्क बना दिया यार, like see अरे this। भाई स्वप्निल, मैं तो ये सोच रहा हूँ कल को और एमपीटी भी स्टेटस नहीं लिख ऑब्जेक्ट पाएंगे किया हम है तो। भारत सरकार ने, यू कैन सी भारत सरकार हैज ऑब्जेक्टेड। अरे क्यों नहीं ऑब्जेक्ट करेगा, उसको क्या लगा कि कुछ भी करेगा, ड्राई नीडलिंग थेरेपिस्ट करके ऐसी कुछ भी, मतलब सो हिलेरियस। मतलब अगर बिजनेस करना है
तो करना यार, तेरे पास टेपिंग है, टेपिंग तेरा चला नहीं तो तू ड्राई नीडलिंग में आया, ड्राई नीडलिंग तेरे को रिस्पॉन्स मिल नहीं रहा है तो तू आईएसटीएम लेके ट्रिपल सर्टिफिकेशन कर रहा है, सारा कंटेंट तो मेरा ही चुरा रहा है, अरे स्वप्निल, मुझे और इस बात सिखा पे रहा एक है, चीज आ जा मेरे को तू ध्यान आई। मन लाइव नहीं, करने। इस बात पे मुझे एक चीज ध्यान आई थोड़े ही दिनों पहले, जब मैंने ये फर्स्ट टाइम आईएएसटीएम नाम की चिड़िया सुनी थी मार्केट में, और मैं आई वॉज लाइक जस्ट सी कि हाँ कर रहा था, and मुझे सरप्राइज रहा कि 2 महीने बाद ही इसका कोर्स आ गया, इसके इसके प्रोडक्ट्स आ गए मार्केट में। मतलब मैंने कहा भाई ये तो मतलब, भाई इसको साबू की जरूरत नहीं है, ये तो अकेला ही चाचा चौधरी काफी है। और उसमें लिखा है कि यू कांट यूज दिस फॉर द लीगल यूज, देख। हाँ, और फिर भी मे बी सर्टिफाइड लीगल फिजियोथेरेपिस्ट। मेरे को डर लग रहा है ये कॉलेज ना चालू कर दे, फिर तो हो गया सारे स्टूडेंट्स का। और जिसने भी अभी तक इससे पास से टेपिंग किया है, ये भगवान, मतलब भगवान ही बचाए। मतलब वी आर नॉट प्रमोटिंग आवर कोर्सेज, बट वी आर जस्ट गिविंग यू, हमको नहीं चाहिए कि आप हमारे कोर्सेज में आए या ना आए, यार दैट्स मैं कंप्लीटली मैं ऑफ योर मैं स्टफ। सीरियसली इस बात से शॉक दूं कि इस बंदे ने काइनेसियो टेपिंग एसोसिएशन इंटरनेशनल के कोर्सेज को ही फेक बता दिया। मतलब जिस बंदे ने इस टेक्निक को इन्वेंट किया है, बकायदा आप एनी वन ऑफ यू गाइस, यू गो टू kinesiotipping.com, वहां पे इसके क्रेडेंशियल देख लो कि ये यूनिवर्सिटी खुद काइनेसियो यूनिवर्सिटी बन गई है, एंड ऑल्सो द कोर्सेज एफिलेटेड बाय यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ कैलिफोर्निया। तो अब यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ कैलिफोर्निया से ये एफिलेटेड है, इसके अलावा सारे बोर्ड से अप्रूव्ड है उसके सर्टिफिकेट। तो भाई हाउ कम दिस सर्टिफिकेट इज अरे कुछ साल इज पहले तो ये फेक? हमारे पास आया था अप्लाई करने के लिए, ये 2012 की बात है, देख। ओह, हमारे एचपी के दैट आई डोंट नो। एचपी के रिहैब रिहैब में हमको लिखा है कि पीयूष जैन सबमिट्स वांट टू अप्लाई फॉर रिहैब टीम। मैंने तो उसको, भाई तू इतना फ्रॉड है, तू मेरा ग्रुप हैक कर दिया तेरे को लाइव करने के लिए, तो अगर मेरे एचपी में आ गया तो पूरा खा ही जाएगा एचपी को। सी दिस वाज इन February 14, 2012। हम्म। एचपी रिहैब टीम को इसको इंटरेस्ट था, भाई अच्छा हुआ नहीं दिया इसको। ओके देख, बच गया तू। प्लीज कर, डियर सर कैन आई हैव योर नंबर, माय नंबर इज दिस नीड टू टॉक टू यू प्लीज। आई लाइक, नहीं भाई मेरे को नहीं बात करनी तेरे से, नहीं तो मैं तो जाता ही था ये दुनिया से आज, अगर इसको लेते रहा तो। हाँ, और सर्टिफिकेट भाई, एज पर मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये एज पर हिज प्रोफाइल, कि मतलब इन्होंने जो है भाई साहब ने 2013 में सर्टिफिकेशन किया है, सो कॉल्ड पता नहीं कहाँ से। और एंड द बेस्ट पार्ट इज ये इंस्ट्रक्टर भी बन गए, और 6 महीने के अंदर, यार मैं नॉवेल लिखता हूँ, मुझे नॉवेल लिखने के लिए कम से कम 1 महीना चाहिए होता है, ये तो प्रोफेशनल बुक है, और प्रोफेशनल बुक लिखने के लिए कम से कम 4 से 5 महीने लगते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं उसके अंदर। एंड इस तो बंदे ने 6 महीने के अंदर बुक भी निकाल दी। और बेस्ट पार्ट उसका, स्वप्निल बता भाई, हाँ रुक जा 140% से 150% रुक जा स्ट्रेचेबिलिटी, रुक जा रुक जा माय रुक जा, गॉड। अच्छा है रुक जा वेट। अभी एक टेपिंग है जो इसका फर्स्ट डोमेन था, काइनेसियो टेपिंग। भाई ने ये बुक के ऊपर एक बुक लिखी है, मैनुअल ऑफ ड्राई नीड, अच्छा सॉरी टेपिंग, टेपिंग टेपिंग, ये वो तो दिया नहीं दूसरा मैंने फर्जीवाड़ा स्क्रीनशॉट, वो है। स्क्रीनशॉट अवेलेबल है अमेजोन पे, ये तो दूसरा उसकी मार रहा है। अमेजोन पे आपको मिल जाएगा पूरा उसका रिव्यूज एंड एवरीथिंग। सो ये है बुक का सैंपल। या अब जिसने भी काइनेसियो टेपिंग किया रहेगा उसको ये प्रॉपर्टी तो पता रहेगी। अब ये हम लोग ने सैंपल बुक उठाया है किंडल से, जिसमें हम लोग ने सिर्फ 4 पेजेस डाउनलोड किए हैं, सिर्फ 4 पेजेस। ओके, पूरी बुक भी डाउनलोड नहीं की क्योंकि हमको वेस्ट नहीं करना था 250 रुपया। 4 पेजेस में हम लोग को 4-5 गलतियां मिली। 4 पेजेस में। गलतियां भाई साहब, मैं तो, मेरा तो दिमाग घूम गया ये देख मैं के खुद कि मेरा टेपिंग 140 भूल से गया यार। 150%। या काइनेसियोलॉजी टेप स्ट्रेच टू अप्रोक्सीमेटली 140 to 150, भाई फट जाएगा टेप। देखिए क्या है, लाइक ड्यूड दिस इज इंटरनेशनल बुक व्हिच इज देयर ऑन Amazon and प्लेटफॉर्म। that and that too and that too you claim it's a best selling book. बेस्ट सेलिंग बुक, और इंटरनेशनल रिव्यूअर्स ने तो बहुत मारी है, वो जो दिखाऊंगा मैं तेरे को। ये पढ़ के तो मेरे होश ही उड़ गए कि टेपिंग में देयर इज द एनर्जी। भाई कौन सा एनर्जी? टेपिंग में द एनर्जी इज स्टोर्ड। पढ़ो तुम लोग, मैं मेरा जजमेंट नहीं दे रहा हूँ। टेपिंग, द एनर्जी स्टोर्ड इन द टेप on stretching is only used in one direction, which decreases the wasting of energy.
When the tape is stretched, it stores the potential energy. Now, due to its ability to stretch and recoil in longitudinal manner, all the potential energy used in specific direction minimizes the energy loss. भाई कहना क्या चाहते हो? As well as increase the efficiency of the tape. It's like, what the fuck is going on? टेप में कौन सी एनर्जी आ गई यार? हो सकता है भाई साहब कोई भूत आ गया हो। पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, क्या फिजिक्स, मतलब कुछ भी यार। और फॉरवर्ड भी हमारा काउंसिल का प्रेसिडेंट कर रहा है ये बुक को। ऐसा हाइट्स है यार। या मेरे से एक बार पूछ लेता ये कितना कितना है भाई, बुक ही छापने तो छाप देना बुक पर ऐसा कि एनर्जी स्टोर्ड। अभी मेरे को बता, वी आर नॉट गिविंग जजमेंट, यू इन दिस 63 whoever is viewing this, you must have used the tape। अब अगर तुमको कुछ एनर्जी मिली उसमें से तो प्लीज कमेंट करना कौन नहीं सी अब प्लीज एनर्जी। हमको हमको उसका फॉर्मूला भी बता देना कि कैसे नापते हैं, या ताकि हम लोग आगे बेचारे फिजियोस को बता देंगे। और रिमेम्बर दिस इज जस्ट 4 pages। उसके ये 4 पेजेस के बाद हम लोग का इतना दिमाग घूम गया कि हम लोग तो सोच रहे थे कि सारी बुक्स ही खरीद ले इसकी। हाँ तो क्या, अब मैं मेरे को तो इतना खुशी हुई कि यार बंदा ये कंटेंट दे रहा है यार, फ्री पे फ्री फिजियोस कंटेंट दे रहे हैं रोस्ट करने के लिए। दिस इज लाइक कि आओ मेरी मारो। अरे ये क्या है? और ये बंदे, अगर ये छोड़ यार, ये इंडिया का इंस्ट्रक्टर है, कोई इंटरनेशनल लोग अगर पढ़ेंगे इसको तो क्या ही वाहियत बोलेंगे। अरे वो रिव्यूज बता जो मेरे को, रिव्यूज अरे जो वो अपन ने छोड़, ये देखे थे। मसल इनहिबिशन और इसका भी देख ले। हाँ The tape is applied throughout the length of the muscle till origin. This helps in relieving or inhibiting the muscle activity and helpful to decrease in the tone and increasing the length of the shortened muscle. मतलब मेरे को तो कुछ समझा नहीं भाई ने क्या बोला है। ओके वो छोड़, ये इसके रिव्यूज है, इंटरनेशनल रिव्यूज पढ़ो। Mr. Romania Serena from something has given 1 star. Completely empty of content. It would be smart for Amazon not to sell these types of products. ये रिव्यू आप अभी भी देख सकते हो। एल्बर्ट लेविंगस्टन फ्रॉम यूएस। भाई डिलीट कर देगा वो, टाइमली डिलीट कर दे, जैसी खबर पहुंचेगी ना डिलीट हो जाएंगे ये। हाँ वो मेरा इंडिया गोस काइनी से भी आज भाग जाएगा वो यहाँ से। So horrible pictures, not what I expected. The pictures are horrible, black and white. I don't mind, but they are such poor quality that you can't see any detail. The picture looks like they are photocopies of photocopies. मतलब ये कॉपिंग का कंटेंट इसको पहले से ही था। Okay, and really too small. One good thing is that the information is good. अब बंदे ने पोटेंशियल एनर्जी सुना रहेगा तो बोला रहेगा अरे वाह फर्स्ट टाइम सुना मैंने पोटेंशियल एनर्जी, तो इन्फॉर्मेशन अच्छी है। एंड वुड मेक अ डिसेंट रेफरेंस गाइड, मतलब गाइड बनाया बुक को उसने, एंड एज अ लर्निंग मैनुअल। इट डजंट कट इट। विश द प्रीव्यू प्रोवाइडेड सम पिक्चर्स। अच्छा छोड़ यार। दूसरा, नॉट व्हाट आई एक्सपेक्टेड, ये पढ़ लो तुम लोग। 1 star, नॉट अट्रैक्टिव फॉर रीडिंग। फिर ये इसका बेस्ट सेलिंग बुक बोलता है वो, 5 star 4 star दे, खुद ही देख लो परसेंटेज। इनकम्प्लीट बुक, मेनी पेजेस मिसिंग, वर्स्ट इन्वेस्टमेंट एवर ऑन Amazon। आई डाउनलोड इट, इज गुड। हम लोग बच गए, हम लोग ने डाउनलोड नहीं किया। एंड टू माई चार्जिंग देयर इज नो पिक्चर्स, ओनली अरे ब्लैंक स्वप्निल, पेजेस। मेरे को तो ऐसा लग रहा है आज के बाद ना अपने नाम से जितने भी बुक्स जाएंगी ना अमेजोन वो पे, छोड़, फोटो भाई साहब देख, इसके फोटो देख पहले। इसके अरे इसके पेज तो इसके अच्छे से सारे पकड़ यार, इतना तो धूमी इसके को भी आएगा हाउ टू इसके वर्क इसके टेप। ये इसके तो सारे इंस्ट्रक्टर है। फॉलोअर्स फिजियोस ना हमको 1 स्टार देते पाएंगे। और हाँ ना, देखियो अरे तू अभी। तू टेयरिंग द पेपर है, टेप भी ठीक से नहीं पकड़ा यार, तो एप्लीकेशन तो, अभी एप्लीकेशन देखो, टेप के ऊपर टेप। टेप भाई कैसी करना मतलब क्या चाह काइंडली, रहे हो, और मतलब कुछ टेप भी, विल नेवर स्टिक, मतलब टेप बोले होती है। कहते हैं कुछ नहीं हो तो सब कुछ कर दो, कहीं ना या कहीं से तो रिजल्ट मिल ही अभी तो जाएगा। फोटो देखना, जैसे सौरभ की हम लोग ने मारी थी ना, इसके फोटोज देखेगा तो भाई तो पागल ही हो जाएगा। कहाँ गया यार ये? तो ये लेक्चर से लिया गया है। तो टेपिंग का रूल्स क्या है? देयर आर नो नो रूल्स। रूल्स। ओके, देयर आर नो रूल्स इन टेपिंग गाइस। ये बहुत एक आविष्कार हुआ है यहाँ पे कि टेपिंग के लिए आपको कोई रूल्स नहीं है। भाई ओके, तो डॉक्टर इस, कहाँ से ना डूब मरेंगे अगर ये सुन लेंगे तो। या कहाँ से मर गया ऑलरेडी। जब मैंने ये सेंड की थी उसको पिक्चर्स 4 दिन पहले,
वो बोला कि क्या है ये, इट्स लाइक आई हैव नॉट डन एनीथिंग। ऐसे स्टॉप फ्रॉड करने के लिए वी हैव टू यूनाइट, वी डोंट हैव एनी काउंसिल, स्टॉप दिस कोर्सेज, नथिंग एल्स। मैं तो बोल रहा हूँ ना, अगर नॉलेज है तो सीधा मेरे साथ आओ, वन ऑन वन रोस्ट, है ना, बिल्कुल बिंदास। क्योंकि काउंसिल तो बैन नहीं करेगी क्योंकि उसका ऑलरेडी है। ये देखो, बैटमैन, बैटमैन नहीं गर्ल्स ये जो अपने को ये आते हैं ना डॉट डॉट्स, क्या बोलते हैं उसको, नोस्ट, फॉर blackheads, ब्लैक हेड्स, या सॉरी, वो, removing of the blackheads with the elastic, adhesive of the elastic adhesive tape. या ब्लैक हेड्स रिमूवल। दूसरे कहाँ गए यार पिक्स, हाँ सॉरी ये। अब कोई मुझे ये समझाओ यार, ये पिक्चर है, ये बेचारी के मैंडिबल पे लगा दिया, अगर दिख रहा है तो। दिख नहीं रहा है, बट हाँ टेप मैंडेबल पे लगा हुआ है। मैंडिबल पे टेप है आई यार। थिंक येलो कलर का है। हाँ मैंडिबल पे टेप लगा के टाइनी से क्या मिलेगा। भाई कुछ तो मिलेगा, नई नई भाई नहीं, साइंटिस्ट की या नई थ्योरी है। एग्जैक्टली। और लेजेंडरी थ्योरीज ये देख, ऑफ लेजेंड। अब ये इसमें पूरा क्लियर वो बोलता है, एज आई older I have learned that pleasing everyone is impossible but pissing everyone is a piece of cake। भाई मेरे को तो ये 2013 से पिस कर रहा है, उसका क्या करूं। और, और अब तो अब इस रोस्ट के बाद ना वो अब मुझसे भी पिस करेगा। या और ये देखो ना, व्हाट इज दिस, ये कौन सा मसल पे कुछ टेप तो है। कुछ तो लोग कहेंगे, कुछ तो होगा। मतलब ना लिवेटर है, ना ट्रपीजियस है, कुछ भी। मतलब तू इमेजिन कर, बुक तो रॉन्ग ही है, टेपिंग एप्लीकेशन भी रॉन्ग, ये और ये क्या कौन है? पता नहीं यार, बस चिपकाओ, और क्या। मेरे को लगता है एससीएम है शायद, स्टर्नोक्लिडोमास्टर या स्केलिन होगा, रिप्स तक जा रहा है, पता नहीं। भाई राक्षस की स्केलेनी है क्या या एससीएम है? हाँ, सो भैया का ये है कि इट्स नॉट चीटिंग, इट्स अ स्ट्रैटेजी। ओके, तो ऑफ ये फूलिंग चीटिंग नहीं पीपल। करेंगे, इट्स नॉट चीटिंग, इट्स अ स्ट्रैटेजी। अच्छा टाइमर आ गया है, 1 मिनट ही है, हम लोग फिर एक ही छोटा सा ही टॉपिक बचा है, वो कवर कर लेंगे। नहीं तो अभी एंड कहाँ हुआ है, अभी तो बहुत सारी चीजें हैं। और ये नेक्स्ट रीडल है लोगों के लिए, व्हाट इज कीड़ा, a thing inside human body that continuously forces to interfere in some other life। ये उसके पेज पे तुमको मिलेगा। ओके। तो अभी और रीस्टार्ट कर लेते हैं स्वप्निल, दोबारा रीस्टार्ट कर लेते हैं अभी। हाँ करने वाला, ये देखो ना, ये लास्ट जाते जाते ये देख लो, ये क्या है, ना ट्राइसेप्स, ना डेल्टॉइड, ना ट्रापेजियस, क्या है, व्हाट इज दिस। कुछ तो है। वेरी बैड यार, वेरी बैड। ऐसा एजुकेशन सिस्टम रहेगा इंडिया का तो। गाइस वी आर कमिंग अप अगेन लाइव, क्योंकि टाइमर हो गया है, दोबारा सा करते हैं इसको। या अगेन वी आर कमिंग अप लाइव। रुक जा, थोड़ा एंटरटेनमेंट देखता हूँ। अरे एंटरटेनमेंट खलल आ जाएगा बीच में। जाते जाते अगर तुमको चाहिए कि हम लोग क्यों इसकी मार रहे, तो देख लो कि वी हैव स्टिल द पासपोर्ट ऑफ केंजो काजी, जो मेरे पास था। वी हैव इनवाइटेड हिम इन 2012 ओलंपिक्स टू गेट अ इंस्ट्रक्टर अभी ये कोर्स। डिटेल में आएंगे स्वप्निल, दिस अप, रीस्टार्ट इट, बेटर रीस्टार्ट दिस, या क्योंकि अभी ठीक है, बहुत कुछ है बोलने के लिए। ठीक है, टाइमिंग खत्म हो गया तो विल रीस्टार्ट। हाँ हाँ।